ओके, वेलकम एवरीबॉडी। सभी को बहुत बहुत नमस्कार। मैं सबसे पहले आपको एक्नॉलेज करना चाहती हूँ कि आज सैटरडे 11 बजे आप इस टॉपिक पर हमारे साथ जुड़े हैं। आई रियली वांट टू एक्नॉलेज एंड थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट for taking out time for this topic today and connecting with us. Uh, you're very, very welcome. And I'm very sure, and it would be my effort that this time that you're spending with us will be well spent for you, and you will take away something that can have a very positive impact on your life. Uh, you will, from my side, I will give you things, and my request will be that be open to picking up something from this workshop that you can immediately put to use and get benefit out of that. So, thank you very, very much. Uh, I plan to speak in a mix of Hindi and English. Uh, I might sometimes speak more in English and less in Hindi. I just want to know from you all if this works, the mixture works, Hindi and English mix works. यस। So type yes if it works for you. Just type yes in the chat box if it works for you. Thank you, Sarika. Thank you, Purnima. Okay. Can you, if some of you can come on video for some time, we will at least connect. And if the connection doesn't allow you, then you can go back to being in a non-video mode. So just for the next 5 seconds, if those of you who have joined can come on video. Thank you, Kirti. डांस में अभी बारिश हो रही है। आपका आपका ऑडियो ऑफ है अभी। आपका माइक म्यूटेड है। ओके, कल 13 इंच बारिश गिरी है यहाँ पे डैम में, एक ही दिन में। अच्छा, एक ही दिन में। ओके। ओके, चलिए, थैंक यू कीर्ति, सारिका एंड पूर्णिमा फॉर agreeing to my request. Can you quickly write down in the chat box from which city or place are you joining? I'm joining from Uttarakhand, Kashipur, where I live. It's a small town in the foothills of Uttarakhand. Bangalore, Rajasthan. Sarika is joining from Rajasthan. Kirti is joining from Dangs. Chitrakoot, Abhishek, Rajat, Balaji, Bangalore. Rajat from Chhatarpur, MP. Magan from Chhatarpur, MP. Okay. Gujarat. So Gujarat, Rajasthan, Madhya Pradesh, Bangalore, अयोध्या। विष्णु ज्वाइन कर रहे हैं अयोध्या से। शांतनु भी छतरपुर से ज्वाइन कर रहे हैं। शांतनु के साथ तीन और लोग छतरपुर से ज्वाइन कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। सो लेट मी बिगिन विथ 3 थॉट्स फर्स्ट, जो हमारे इस काम को इन्फॉर्म करती हैं। जस्टिस। ओके, द फर्स्ट थॉट इज that everyone can be a change maker. हमारा टॉपिक ही आज का ऐसा था, ऐसा है, जहां हम कंप्लेंट्स की बात कर रहे हैं, जहां हम एक्शन और रिजल्ट्स की बात कर रहे हैं। तो पहली एक थॉट है जो हमारे काम को इन्फॉर्म करती है दैट एवरीवन कैन बी अ चेंज मेकर। हम अपने जगह, अपने कॉन्टेक्स्ट, अपने प्लेटफॉर्म में एक चेंज मेकर या परिवर्तन शुरू करने वाले व्यक्ति हो सकते हैं, हम चाहे जो भी हों।
जो भी हमारा स्टेटस हो, कॉन्टेक्स्ट हो, अथॉरिटी हो, पोजीशन हो। दूसरा, देर इज एन अनपैरेलल्ड जॉय इन सर्विंग आवर कम्युनिटीज। So when we are doing things for our community, the joy that we get from that is unparalleled. It's very different from the joy we get when we are achieving things for ourselves only. Nothing wrong with that, just that our focus is right now on public leadership and public impact. So जो आनंद अपने समाज, अपने जिन कम्युनिटीज से हम जुड़ाव महसूस करते हैं, उनको सर्व करने में मिलता है, वो आनंद एक अतुल्य आनंद है, एक अतुलनीय आनंद है। बहुत अलग सा आनंद है वो। और तीसरा, अपनी इच्छाओं, अपने सपनों, अपने मुद्दों को बार बार खाली एक इच्छा से रियलिटी में परिवर्तित करने की योग्यता हम सीख सकते हैं। द एबिलिटी टू टर्न इंटेंशन इनटू रिजल्ट्स रिपीटेडली कैन बी लर्न। आवर होल वर्क इज informed by this. The Causing Incredible Performance believes in this, that yes, there is a method to turn intention into reality and that can be learned. तो इन तीन विचारों के साथ मैं शुरू करना चाहती हूँ। इस 1 घंटे को जो हम साथ में बिताएंगे, इसमें आप एक्स्ट्रॉर्डनरी परफॉर्मेंस डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस में कैसे प्रोड्यूस करें, इसमें कुछ चीजें सीख कर जाएंगे। कम से कम 3 चीजें आज आप सीख कर जाएंगे। That in your own circumstance, which might look difficult, you may have constraints, you may have issues with whatever is available to you. How can you cause change in that kind of a circumstance? So that's what I want to offer you today. And I'm very confident that by the end of this workshop, you will get that. So while I would be doing most of the talking, you are welcome to write in the chat if you have a pressing question and you want it answered then and there. I will, towards the end of the workshop, take all the questions that you may have. I will take out about 15 minutes for questions. So you will not go back with the questions. You will have them answered here. Okay? So why are we doing this and what is this work? I want to begin both with my story and the mission of this work. So the mission of this work is basically we want public leaders to create bold impact on a variety of issues that matter to them. And in the next 2.5 years, we began this a little over 6 months back, this community work. The Causing Incredible Performance work has been there for over 13 years now. This initiative of building a community of CIP practitioners began about 6 months back. So हमारा मिशन है कि 10,000 या उससे ज्यादा पब्लिक लीडर्स बोल्ड इम्पैक्ट क्रिएट करें उन मुद्दों पर जो उनको मैटर करते हैं और उनके कम्युनिटीज, उनके कॉन्टेक्स्ट में इम्पॉर्टेंट हैं। वो हेल्थ हो सकती है, एजुकेशन हो सकती है, लाइवलीहुड्स, गवर्नेंस, सस्टेनेबिलिटी, कम्युनिटी डेवलपमेंट, वेस्ट मैनेजमेंट, ट्रैफिक मैनेजमेंट, कुछ भी हो सकता है। ऐसा मुद्दा जो पब्लिक को इम्पैक्ट कर सकता है। और हमें कॉन्फिडेंस है कि हमारा फ्रेमवर्क और हमारा अनुभव और हमारी अप्रोच लोगों को ये करने में मदद कर सकती है। थोड़ा सा अपने बारे में बताती हूँ। जैसे हम आगे बढ़ेंगे और बताऊंगी, पर शुरुआती समझने के लिए, मेरा नाम निधि तिवारी है। I've been a coach for Causing Incredible Performance work for last 6 years or so. Before that, I started my journey in the development space from IRMA, Institute of Rural Management, Anand. वर्गीस कुरियन जो मिल्कमैन ऑफ इंडिया हैं, उन्होंने ये इंस्टीट्यूट सेटअप किया। और कैसे हम प्रोफेशनली सोशल इम्पैक्ट को
बढ़ा सकें, कर सकें, और सोशली रेलेवेंट कामों को बेहतर तरीके से मैनेज कर सकें, उस पर ये इंस्टीट्यूट आधारित है। तो वहां से मुझे बहुत प्रेरणा मिली, बहुत फियरलेसनेस मिली, और वो मेरी लगभग 25 साल पहले मैंने वहां से पढ़ाई प्राप्त करी। और जिस साल मैं वहां से पास आउट हुई, उस साल ही गुजरात में भूकंप आया था। तो भीतर से बड़ी इच्छा हुई that I go there and contribute to the rehabilitation in Gujarat. So I went there and I ended up working in Gujarat for 4 years in Bhuj, Kutch for 4 years as part of Gujarat State Disaster Management Authority. आप में से कई लोग संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, और मुझे लगता है कि डिजास्टर मैनेजमेंट में आपने भी जरूर ही काम किया होगा, क्योंकि हमारी सभी कम्युनिटीज कभी ना कोई डिजास्टर फेस करते ही हैं। अ, एक डिजास्टर मैनेजमेंट का जो अनुभव होता है वो अपने को एक दिखाता है कि कम समय में कैसे हम एक बड़ा परिवर्तन ला पाते हैं जो हम नॉर्मल समय में नहीं ला पाते। तो वो अनुभव मैंने न सिर्फ वहां किया, बल्कि कई और डिजास्टर्स में भी उसके बाद मैं उसमें भागीदार रही, उनके रिहैबिलिटेशन के काम में, चाहे वो सुनामी हो या कश्मीर का अर्थक्वेक हो। और मन में एक बड़ी आशा भी बन गई कि हमारे बहुत सारे जो मुद्दे हैं, पब्लिक इश्यूज हैं, उन पर काफी काफी तेजी से और काफी गहराई से काम किया जा सकता है। कभी कभी डिजास्टर हमें वो बैकग्राउंड देता है जब हम वो कर सकते हैं। लेकिन जब मैं लगभग 10 साल पहले प्रोफेसर बालाजी को मिली, तो मुझे समझ में आया कि हमें सिर्फ डिजास्टर में ही हम बड़ा परिवर्तन कर सकते हैं, ऐसा नहीं। हम बिना डिजास्टर के भी बड़ा परिवर्तन कर सकते हैं, और उसका एक मेथोडोलॉजी है, और जिसे हम उपयोग कर सकते हैं। तो जैसे जैसे हम अपने साथ अभी आपके साथ समय बिताऊंगी, आई विल एक्सप्लेन दैट मोर। सो my basic experience in the development space started with a disaster, and it was an extremely empowering and humbling experience that led me to believe that extraordinary results are possible, although in disaster. But thankfully, I later on in my life learned that you don't have to wait for a disaster to bring about big change. Okay. So that was one piece of one key part of my work experience has been around disaster management. Another has been in working on democracy. I've worked with election commission. I've worked with younger members of parliament in bringing about change. I worked for 5 years with the Ministry of Petroleum and Natural Gas in rolling out the Ujjwala program, which has turned out to be one of the largest in the world in clean cooking energy transition. So also at a very local level in my society, I am currently the Swachhata ambassador for my municipality, my small city of Kashipur. It's a small city, about 2.5 lakh people. So uh, I've had an opportunity to be part of social change in a variety of settings. And since last 6 years or so, I have coached people in causing change. I'm going to share some examples with you, but I've had the opportunity to coach people, and uh, people from NGOs, people from governments, people from small NGOs, big NGOs, corporates, when they've decided to take on some big change, and they have done that. So this is a bit about me. अब जो हम बात कर रहे हैं वो काम करता है, उससे इम्पैक्ट आता है या नहीं आता है, उसके बारे में मैं कुछ उदाहरण आपके सामने अब रखूंगी। हम्म अ, बीच में थोड़ा सा चैट में जवाब देके बताएं कि इस वर्कशॉप से या इस आज के सेशन से क्या आप
होपफुल हैं कि आपको कुछ ऐसा यहाँ पर मिलेगा जिससे आप अपने करंट जीवन में अप्लाई कर सकेंगे। यदि हाँ तो कृपया यस टाइप करें। थैंक यू मगन। थैंक यू संजय जी, यस। सारिका यस। कीर्ति यस। धीरज यस। पूर्णिमा यस। शालिनी, रजत, देखिए ये मुझे मौका भी दे रहा है आपके नाम लेने का। तो अभिषेक यस। भूपेंद्र जी यस। वेरी कॉन्फिडेंट। थैंक यू भूपेंद्र जी। ओके। तो अब मैं आपको कुछ उदाहरण आपके सामने रखूंगी। वो उदाहरण मैंने चूज किए हैं हमारे काम से, ताकि हम सामने आपके रख सके कि किस प्रकार का परिवर्तन पॉसिबल है। ओके, एक सेकंड, हाँ जी। ओके, ये एक उदाहरण मैं उड़ीसा से दे रही हूँ। ये एक सरकारी डॉक्टर थे। एक बड़ा ग्रुप सरकारी डॉक्टर्स का एक साथ इस कार्यक्रम में वो शामिल हुए थे। पर मैं आपको एक उदाहरण वहां से दे रही हूँ। तो इनका बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था अनीमिया। अनीमिया जो खून की कमी या आयरन की कमी से अक्सर महिलाओं को हो जाता है। तो उन प्रेग्नेंट महिलाओं में जब अनीमिया होता है तो उसका बहुत बड़ा असर बच्चों पर भी पड़ता है। तो इनका मेन इंटरेस्ट था कि जो प्रेग्नेंट महिलाएं अगर अनीमिक हैं तो कैसे उसको जो है उस पर कोई ये असरदारी परिवर्तन ला सकें। तो ये सालों से उस विषय पे काम कर रहे थे। सरकारी रोल में थे, तो ऐसा नहीं है कि पहली बार कर रहे थे। पर वो थोड़ा फास्ट परिवर्तन चाह रहे थे। ओके। और उनके मन में कुछ कंस्ट्रेंट्स थे कि इन इन कारणों की वजह से ये शायद जल्दी संभव नहीं है, ये एक बहुत लंबा ही कार्यक्रम हो सकता है, कोई इसमें हम फास्ट चेंज एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो क्या क्या कारण उन्हें रोक रहे थे? सो दिस इज रिटन इन इंग्लिश, देयरफॉर आई एम रीडिंग इट इन हिंदी। हाँ। सो क्या कारण थे? पहली बात तो ज्यादातर ट्राइबल एरिया में उन्हें ज्यादा अनीमिया का केस दिखता था, जहाँ एजुकेशन भी कम थी। लोग माइग्रेट करते थे खेत पे, कभी कुछ समय खेत पे रहते थे, कुछ समय दूसरी जगह रहते थे। कई प्रकार के उनके कस्टम्स थे, गरीबी थी, टैबलेट्स खाना नहीं चाहते थे, खाने में प्रोटीन की मात्रा कम थी, और विस्तार बहुत ज्यादा था, या एरिया इनका पूरा जिला ही बहुत बड़ा था। हम्म। पहाड़ी भी था, जंगल भी थे, और बड़ा जिला था। और इनको लगता था कि इनका जो स्टाफ है वो बहुत मोटिवेटेड नहीं है। तो कैसे ये परिवर्तन लाएंगे, ये ये सब इन्हें रोक रहा था। हम्म। तो जब भी हमारी कोई एक बड़ी प्रबल इच्छा होती है तो हमारे सामने कुछ शिकायतें या कुछ कंसर्न्स या कंप्लेन्स भी होते हैं। अगर इतना ही आसान होता तो अपने आप ही नहीं इतनी बड़ी परफॉर्मेंस आ जाती है ना। तो ये इनकी परिस्थिति थी। तो इस परिस्थिति में उन्होंने जब हमारे साथ जुड़े, उन्होंने एक गोल लिया। हाँ। वो बताने से पहले मैं आपको जरा दो चार चीजें थोड़ा बता देती हूँ, इसे मैं नीचे से पढ़ूंगी। सो एक चीज होती है बिजनेस एज यूजुअल, मतलब हम बहुत श्योर हैं कि इतना तो कर ही लेंगे किसी भी विषय में, इतना तो अचीव कर ही लेंगे। नीचे से पढ़ रही हूँ। स्ट्रेच, चलो इतना, इससे थोड़ा ज्यादा करेंगे तो लगभग 80% श्योरिटी है कि ये भी कर लेंगे। और सबसे ऊपर आप देखेंगे इम्पॉसिबल, एक नियत समय में इतना नहीं हो सकता। ठीक। तो स्ट्रेच और इम्पॉसिबल के जो बीच में है उसे हम कह रहे हैं इनक्रेडिबल। ठीक है। बस ये शब्द थोड़ा ध्यान रखिए, आगे की स्लाइड्स आप देखेंगे आपको क्लियर आ जाए। ओके। सो दिस डॉक्टर वेंट ऑन टू टेक अ गोल फॉर 3 months। और इन्होंने क्या गोल कहा?
कि नंबर ऑफ एनीमिक प्रेग्नेंट women इंक्रीजिंग हीमोग्लोबिन लेवल बाय ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 ग्राम परसेंटेज ऑन और बिफोर 31 जनवरी 2023। ये इन्होंने अक्टूबर एंड 2022 में ये गोल लिया था। तो इसकी स्पष्टता देखिए। हाँ, तो जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं और एनीमिक हैं उनमें कम से कम 2 पॉइंट की बढ़ोतरी करेंगे। यदि 6 पर है तो 8 पे ले जाएंगे, 8 पे है तो 10 पे ले जाएंगे, 10 पे है तो 12 पे ले जाएंगे। ठीक है। और सो ये इसको मेजर करेंगे कि कैसे लगभग 11,000 महिलाएं उनके उस क्षेत्र में थी। तो इन्होंने बोला कि बिजनेस एज यूजुअल गोल बोला कि मैं इस दौरान इस 3 महीने में 1,000 महिलाओं के लिए पूरा श्योर हूं कि 1,000 तो मैं ले ही आऊंगा ऊपर। 2 पॉइंट। ठीक है। थोड़ा और मेहनत करूंगा तो 2,000 ले आऊंगा, लेकिन 5,000 नहीं हो सकता, असंभव। ठीक है। सो 5,000 और 2,000 के बीच उन्होंने एक नंबर उठाया कि 4,000। तो उन्होंने जबान दी, ये नंबर उठाया, 4,000 और मोर women will go up by 2 points on hemoglobin scale. Okay. And he finally achieved what number? 6,235। अगर इसको बिजनेस एज यूजुअल से कंपेयर करें तो ये ये कितने गुना हुआ चैट में लिखे जरा। बिजनेस एज यूजुअल था 1,000 और उन्होंने अचीव किया 6,235। कितना उछाल आप देख रहे हैं उस रिजल्ट में? चैट में लिख के बताएं, क्या क्या उछाल दिख रहा है आपको ये? और एक जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि उन्हीं परिस्थितियों में उसी बजट, वही लोग, वही कॉन्टेक्स्ट, ऐसा नहीं है कि रातों रात कोई बड़ा परिवर्तन आ गया उनके क्षेत्र में। और बल्कि कुछ मुश्किलें भी आई, कुछ लोग स्ट्राइक पर चले गए। उसके बावजूद उन्होंने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, 6 गुना, 6 गुना चेंज वो ला सके। दूसरे एग्जाम्पल पे जाती हूँ। ये शिक्षा के क्षेत्र से है और ये साउथ का एग्जाम्पल दे रही हूं मैं आपको। कर्नाटका के पास एक अगेन एक थोड़ा ट्राइबल इलाका है। इनका इंटरेस्ट था ट्राइबल बच्चों की पढ़ाई में, जो फर्स्ट जनरेशन स्टूडेंट्स थे, मीनिंग देयर पेरेंट्स मे नॉट हैव गॉन फॉर एजुकेशन एट ऑल एंड दे वर स्टडिंग इन स्कूल्स। So his focus was on children who were in class 10th, who were going to write the board exam that year. Okay. Uh, and he believed that many of them are going to fail, क्योंकि इंग्लिश, मैथ्स और साइंस में किसी को 1 नंबर आ रहा है, 2 नंबर आ रहा है, 3 नंबर आ रहा है। सो ही वॉज प्रीटी वरिड अबाउट दैट कि ये कैसे ये बोर्ड एग्जाम पास करेंगे। अगेन ये उस साल की जनवरी में ये हमारी बातचीत हो रही है। बोर्ड एग्जाम मार्च के आखिर में होने वाला है। तो सबसे पहले उनकी चिंता थी कि इतना टाइम ही नहीं है, हो ही नहीं सकता। दूसरा, स्कूल सपोर्ट नहीं करेंगे, ये एनजीओ सरकारी स्कूलों के साथ काम करती थी। तीसरा, पेरेंट्स घर में तो कोई माहौल दे नहीं पाएंगे पढ़ाने का, तो कैसे बच्चा करेगा। और उन्हें ये भी लगा कि बच्चे भी मोटिवेटेड नहीं है। तो ये सब इनकी परेशानियां थी और ये इस विषय पर गोल लेना चाहते थे। तो इन्होंने गोल लिया। क्या गोल लिया इन्होंने? इस तरफ देखेंगे हम, हरा जो बॉक्स है उसमें देखेंगे। तो पहले तो इन्होंने कहा कि इस 3 महीने में कोई पास नहीं हो सकता। हम्म ये उनकी सोच थी। अपना डेटा देखकर ही बोल रहे थे। उन्होंने कुछ 49 बच्चों को चिन्हित किया और उसमें कहा कि इसमें से कोई पास नहीं हो सकता। जैसे चीजें चल रही है वैसे ही चलती रही तो कोई पास नहीं होगा।
फिर उन्होंने थोड़ी और कोशिश करी, देखा, तो कहा कि अच्छा इनमें से 10 को जरूर मैं पहुंचा पाऊंगा पास 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 परसेंटेज तक। पर कहा कि 37 इम्पॉसिबल है, 37 इज इम्पॉसिबल। ओके, he went ahead and took a goal of 25 out of 49 children, that he is going to focus on 25 children, and he was able to achieve 45 children. 45 children achieved. First, they passed the practice board exam, and then they went on to pass the real board exam. So, जहां उन्हें लग रहा था कोई पास नहीं होगा, वहां पर 45 people passed. कितने गुना आपको लगता है ये परिवर्तन है? थैंक यू संजय जी, अमेजिंग, हाँ। थैंक यू भूपेंद्र जी, एक्स्ट्रॉर्डनरी। ये अगर आप मैथ्स के मैथ्स थोड़ी बेसिक पढ़े होंगे, तो ये एक इनफाइनाइट चेंज हो गया, क्योंकि हमारा डिनोमिनेटर तो जीरो है ना। जहां पे जीरो बच्चे के पास होने की हमारी आशंका थी कि कोई पास नहीं होगा, वहां पर हमें 45 बच्चों ने बोर्ड पास किए। और फिर आगे हम स्वयं सोच सकते हैं कि जो बच्चा 9वीं फेल होने वाला था, वो बच्चा अब 10वीं पास हो गया, तो ना सिर्फ उसकी आइडेंटिटी थोड़ी बदल गई, पर उसके जीवन का जो ट्रैजेक्टरी है वो भी बदलने की पूरी पूरी संभावना है। थैंक यू कीर्ति जी। ओके, अब मैं एक और उदाहरण देती हूँ। सॉरी, थोड़ा अटक गया है, मैं फिर से शेयर करती हूँ। हम्म, जी। अब ये एक वेस्टर्न इंडिया से ये एग्जाम्पल दे रही हूँ। अ, ये ये एक एनजीओ का एग्जाम्पल है, जहां जिन्होंने एक कम्युनिटी इंस्टीट्यूशन या फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी। उनकी खासियत ये थी कि उन्होंने सिर्फ महिलाओं के लिए बनाई थी, मतलब महिलाएं ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में थी, महिला ही सीईओ थी, और वो महिलाओं की इनकम बढ़ाने पर ही काम कर रहे थे। सो दे वर वर्किंग ऑन विमेन्स इनकम एंड विमेन्स rise in the status of women in that community. So this woman who was the CEO of this FPO, she had also risen from the ranks only. She was a community person, and over the years she had worked with the NGO and had come up to this stage. So ये जो महिला थी काफी यंग भी थी, और उनकी इच्छा थी कि जो ये नई एफपीओ बनी है वो अच्छा बिजनेस कर सके, ताकि सबकी आमदनी बढ़ सके, है ना। आ, और लोगों का कॉन्फिडेंस इस नई इंस्टीट्यूशन में बढ़े। लेकिन उनको अपनी क्षमता पर और अपने लोगों पर थोड़ा अविश्वास था कि कैसे करेंगे। हाँ, उनकी अपनी क्षमता भी बिजनेस की, उन्होंने पहले कभी किया नहीं था, तो उस पर थोड़ा अविश्वास। सो उन्होंने जब इस पर गोल लिया, तो उन्होंने क्या गोल लिया? उन्होंने लिया अपने टर्नओवर के ऊपर, कि भाई हम 3 महीने में कितना टर्नओवर करेंगे। तो उनका बिजनेस एज यूजुअल नंबर था 6 लाख। 6 लाख तो कर ही लेंगे ये लोग। ज्वार, ताजी सब्जी, और रिन्यूएबल एनर्जी के कुछ प्रोडक्ट्स भी थे इनके पास। ये अपने पास के शहर में ताजी सब्जी अपने खेतों से कलेक्ट करके बेचते थे। और वो ज्वार की बेल्ट है, तो ज्वार भी बहुत उगता था वहां। उसकी भी खरीदी और बिक्री में एक थोड़ा मार्जिन उनका निकलता था। तो इनके पास जो जो ऑप्शंस थे, और दूध का भी थोड़ा काम करते थे। तो इन सब से उन्होंने सोचा कि 6 लाख का टर्नओवर मेरा जरूर हो जाएगा। आ, और इन्होंने गोल लिया 9 लाख का।
मैंने पहले ही बताया, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कम था उनको, पर इनका जो रिजल्ट आया वो आया 22.93 लाख, लगभग 23 लाख। तो 6 से, कहाँ 6 है और कहाँ 23 लाख है, लगभग 4 गुना बढ़ोतरी ये अपने काम में कर सकी, टर्नओवर बढ़ा सकी, इनका कॉन्फिडेंस बढ़ा, उस क्षेत्र के बैंक्स इनको रिस्पेक्ट करने लग गए, और इनकी अपनी टीम तो इनकी रिस्पेक्ट करने ही लग गई। जो 10 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे उन सब ने सहयोग किया, सबसे इन्होंने जो है लोगों को मोबिलाइज किया और इस गोल को अचीव किया। तो ये 3 उदाहरण आपके सामने रखने का मेरा इंटेंशन यही था कि आप देख सकें कि कैसे परिवर्तन थोड़े ही समय में हुआ है और दिख रहा है। ओके, अब एक छोटा सा एग्जाम्पल दे देती हूँ, थोड़ा सा बिजनेस सेटिंग का, क्योंकि ये जो फ्रेमवर्क है हमारा ये हर कॉन्टेक्स्ट में काम करता है। हमने आज पब्लिक लीडरशिप का विषय फोकस पे रखा है, पर एक उदाहरण मैं आपको दे देती हूँ। ये एक सेल्स का उदाहरण है, जहां पर जैसे मैंने बोला था, बिजनेस एज यूजुअल नंबर अपना 3.5 करोड़ था, गोल लिया 17.5 करोड़ का, और जो फाइनल रिजल्ट आया वो 20.83 करोड़ का आ गया। तो 3.5 के सामने 20.8 करोड़ का अचीवमेंट हुआ। सो किसी भी कॉन्टेक्स्ट में हमने लोगों को हेल्प करी है एक्स्ट्रॉर्डनरी रिजल्ट्स प्रोड्यूस करने में। ये एक बिजनेस का उदाहरण भी मैं आपके सामने रख रही हूँ। अब इन उदाहरणों के बाद मैं थोड़ा सा ये भी एक्नॉलेज करना चाहती हूँ that when we as public leaders, when we want to bring about some change, there are many problems we face. It's not that there are no problems. And if we sometimes are complaining because there are those problems which stop us from achieving what we want to achieve. Okay. So let me go ahead and, based on my understanding, and put forward some problems in front of you. और मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि बताइएगा अगर आप रेजोनेट करते हैं इन प्रॉब्लम से, या कोई इनमें से प्रॉब्लम आपको ज्यादा दिखती है। सो फर्स्ट प्रॉब्लम इज, हाउ डू आई प्रोड्यूस रिजल्ट्स डिस्पाइट लिमिटेड रिसोर्सेज एंड अथॉरिटी। ना तो रिसोर्सेज है, ना अपने पास अथॉरिटी या पोजीशन है, जो भी परिवर्तन हम लाना चाह रहे हैं उसके लिए, या कम है, जितनी चाहिए उतनी नहीं है। प्लान्स और मीटिंग्स तो बहुत होती हैं, पर अपने आप वो रिजल्ट्स में बदलते नहीं है। और कई बार हम बहुत कर पाते हैं परंतु अपना बर्नआउट हो जाता है, मतलब वी हैव टू पुट इन टू मच फ्रॉम आवरसेल्व्स एंड वी सफर द कॉस्ट ऑफ giving to community in terms of maybe our own health or our own family time. So we experience burnout. Uh, Sometimes it looks very difficult, like there's so much effort and so little impact. And how does one go keep on going when one is feeling overwhelmed and unsupported? सब कुछ अपने ही कंधों पर है और सपोर्ट नहीं मिल रहा, कोई स्ट्रक्चर नहीं मिल रहा। और कई बार हम ऐसे मुद्दे पे काम करना चाहते हैं जो इतना बड़ा है कि समझ ही नहीं आता कि हम कहाँ से शुरू करें। यहाँ पे मैं पॉज करूंगी और आप लोगों से पूछूंगी कि क्या इन 1 2 3 4 5 6 प्रॉब्लम्स में से कोई प्रॉब्लम आप एक्सपीरियंस करते हैं। उसका भूपेंद्र जी ने सबसे पहले लिख दिया, सारे सारे एक्सपीरियंस करते हैं जी। अब और लोग और मेंबर्स से मैं पूछूंगी, क्या इनमें से कोई प्रॉब्लम आप ज्यादा फेस कर रहे हैं। आप वो नंबर डाल सकते हैं 1 2 3 4 5 6 में से, कि हाँ ये समस्या मैं ज्यादा एक्सपीरियंस करता हूँ, या ये समस्या मुझे रोकती है वो करने से जो मैं करना चाहता हूँ।
सारिका बोल रही हैं नंबर 3। जूही बोल रही हैं 4। मगन, ओके, 3 और 4। संजय जी 1 और 6। अच्छा, गवर्नमेंट कन्वर्जन की टारगेट अचीव करने में दिक्कत आ रही है। वही, अथॉरिटी अपने पास कम है क्योंकि गवर्नमेंट से हम काम नहीं करवा पा रहे हैं। बिल्कुल। 1 और 6, 3 और 4। अभिषेक जी 1 और 6, रोमी 3, शालिनी 1 और 6। ओके। क्या ऐसी कोई प्रॉब्लम आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं जो यहाँ पर नहीं लिखी है आपको, और आपको लगता है कि वो आपको रोकती है बड़ा सामाजिक परिवर्तन लाने में, या अपने जो भी आपके एनजीओ का उद्देश्य है, या आपकी पोजीशन में आपका उद्देश्य है उसे अचीव करने से? यदि आप में से कोई बोलना चाहें तो बिल्कुल अनम्यूट करके बोलें, कि यदि कोई और प्रॉब्लम हो इसके अलावा। ओके। तो यानी कि मैंने अच्छी समरी करी है इसका। इसका अर्थ मैं यही निकाल रही हूँ, सेल्फ डाउट। ओके। सेल्फ डाउट भी बिल्कुल, सेल्फ डाउट हमें रोकता है। डिस्ट्रैक्शन, ओवर थिंकिंग। ओके, ये भी हमें रोकता है। ओके, आगे चलते हैं। तो अब मैं आपको जो इस वेबिनार का टेक अवे है आपके लिए, वो शेयर करूंगी। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि अगर नोटबुक है, नोट्स लेना चाहें, मोबाइल में लेना चाहें, नोटबुक में लेना चाहें, अवश्य ले लें। थोड़ा सा फोकस, लगभग 15-20 मिनट ले आए। मैं कुछ आपके साथ एक्स्ट्रॉर्डिनरी परफॉर्मेंस के लिए क्या क्या जरूरी है ये शेयर करूंगी। और मैं बीच बीच में आपसे रिक्वेस्ट भी करूंगी कि कुछ पढ़ने के लिए, या कुछ आप जो समझ आ रहा है आपको वो बताने के लिए। ठीक है। तो शुरू करते हैं। क्या किया जा सकता है? हाँ, ये 6 के 6 प्रॉब्लम्स हमने देख लिए, इसके बावजूद कैसे हम सोशल इम्पैक्ट कर सकें, कैसे हम वो परिवर्तन ला सकें जो हम अपने सोसाइटी, अपने समाज, अपनी कम्युनिटी में लाना चाहते हैं, कैसे कर सकते हैं। ओके। तो सबसे पहले मैं चाहती हूं आप में से कोई एक वॉलंटियर, कोई भी, जरा जो यहाँ पर लिखा हुआ है इस स्क्रीन में उसे पढ़ दें। और मैं फिर उसका आपको लॉजिक बताऊंगी कि क्यों हम इसको पढ़ रहे हैं। कोई भी आप में से एक वॉलंटियर कर दें और इसे पढ़ दें। May I? प्लीज जूही, गो अहेड। Action, what you do, हम्म। result, outcome of what you do, goal, result you want to achieve in a duration. ओके। हिंदी का भी पढ़ना है क्या? हाँ, हिंदी का भी पढ़ दीजिए, आप पढ़ सकती हैं तो। हाँ। जी जी। कार्य जो आप करते हैं, और परिणाम आप जो करते हैं उसका नतीजा, और लक्ष्य परिणाम जो आप एक निश्चित अवधि में प्राप्त करना चाहते हैं, कार्य से अपेक्षित नतीजा। अ, हम इस पूरे कार्यक्रम में लक्ष्य पर फोकस करते हैं, जो परिणाम आप चाहते हैं एक अवधि में, तो उसमें समय भी है और परिणाम भी है। ये जरा, ये एक ध्यान रखिएगा। कई बार हमारी नेचुरल टेंडेंसी होती है सिर्फ एक्शन की बात करने की। हम ये करेंगे, हम वो करवाएंगे, हमें इससे ये करवाना है। लेकिन
परिणाम या लक्ष्य पर उतना फोकस नहीं रहता। तो यहां पर हम लक्ष्य की ये एक सिंपल परिभाषा है, आप इसे जीवन में हर जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि हम परिणाम की बात कर रहे हैं और समय की बात नहीं कर रहे हैं कि कब तक हम उसे प्राप्त करेंगे, तो वो या तो खाली इच्छा है, या कोई सपना है, या सिर्फ कल्पना है, जब तक हमने समय नहीं लगाया। हम्म? तो वो समय अवधि लगाना आवश्यक है। दूसरा दूसरा शब्द जो हमारी वेबिनार के टाइटल में भी है और हमारे फ्रेमवर्क का सबसे पहला शब्द, वो क्या है? वो है कॉजिंग। इसको भी कोई पढ़ दीजिए, कोई वॉलेंटियर। अभी मुझे लगातार 2-3 स्लाइड्स के लिए वॉलेंटियर चाहिए, तो तैयार रहिएगा। कौन पढ़ेगा? ये पूर्णिमा, आप पढ़ रही हैं? I can. गो अहेड। Making something, causing is making something happen deliberately and not letting that something happen. Deliberately equal to goal directed, thought through, and willing. Causing calls for using ownership language, that is from page 15, and taking as target of change, ओके 16. ओके, इसी को हिंदी में भी पढ़ देती हूँ, फिर हम ये दो टूल सीखेंगे। ओनरशिप लैंग्वेज क्या है और टारगेट ऑफ चेंज क्या है। अ, तो कॉजिंग मेकिंग समथिंग हैपन डिलिबरेटली, मतलब जानबूझकर कुछ चेंज लाना या कुछ हासिल करना। अपने आप हो रहा है कुछ ना कुछ, वो नहीं। जो हम जानबूझकर कर रहे हैं उस पर हमारा फोकस है। और जानबूझ या डिलिबरेट का क्या मतलब है? पहले तो कोई लक्ष्य होगा, गोल, उद्देश्यपूर्ण कुछ गोल है, और वो गोल सोच समझ के लिया है। ऐसे ही आसमान से हमने कोई नंबर उठा लिया, ऐसा नहीं। सोच समझ कर और स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से, विलिंगली। कोई आपको फोर्स नहीं कर सकता है कोई बड़ा चेंज लाने के लिए, तो ये भीतर से ही आना है, स्वेच्छा से। सो मेकिंग समथिंग हैपन डिलिबरेटली, या जानबूझकर, उद्देश्यपूर्ण, सोच समझकर और स्वेच्छा से कुछ हासिल करना, वो है कॉजिंग। उसके लिए दो चीजें जरूरी है: स्वामित्व भाषा या ओनरशिप लैंग्वेज, और परिवर्तन के लक्ष्य में रूप में लेना। अब ये दो टूल्स जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इसे आप अपने रियल लाइफ में भी लगा सकते हैं। बहुत सरल टूल्स हैं। मैं आपको अभी दिखाती हूँ। ओके, पहले इंग्लिश में दिखा देती हूँ। एक और वॉलेंटियर प्लीज। इसको आप इधर से उधर पढ़िएगा। रिनंसिएशन का क्या मतलब है? त्याग की भावना, या छोड़ दिया हमने, या चलता है अगर हम उसे यूज करें तो, वो रिनंसिएशन लैंग्वेज है। ओनरशिप है मालिकी की भावना, हम उसे अपने हाथ में ले रहे हैं। कोई वॉलेंटियर प्लीज। थोड़ा सा मेरी घड़ी पे नजर है, हाँ, हमारे पास थोड़ा ही टाइम है। फटाफट कोई आए। रोमी, आप बोलना चाहती हैं? ओके, इन द इंटरेस्ट ऑफ टाइम आई विल टेक इट ऑन। ओके, सो रिनंसिएशन लैंग्वेज में हम क्या कह रहे हैं? इट इज यूजफुल। और ओनरशिप में हम कह रहे हैं आई फाइंड इट यूजफुल। द जॉब हैज बीन डन, आई वी हैव डन द जॉब। देयर इज नो टाइम, आई हैव नॉट मेड टाइम। इट इज नॉट पॉसिबल, आई बिलीव वी कांट डू इट। It has not been done, we have not done it. He has not sent it,
I have not made him send it. इसमें एक्टिव और पैसिव आपने ग्रामर में पढ़ा होगा तो वो अंतर तो आपको दिखेगा ही, पर आपको जो इसमें सबसे बड़ा अंतर देखना है वो ये कि जब हम कह रहे हैं आई हैव नॉट मेड टाइम, हम अपने को रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दे रहे हैं और पावर भी दे रहे हैं. आई कुड हैव मेड टाइम बट आई हैव नॉट मेड टाइम. But when we say there is no time, what we mean is that we have nothing to do in it. Like the time has not made itself available to us. So, ना हमारे पास कोई पावर है, ना हमारी कोई जिम्मेदारी. जब हम कुछ परिवर्तन लाना चाहते हैं जानबूझकर सोच समझकर, तो हमारी भाषा में हमें ओनरशिप लैंग्वेज लगानी होगी. जब तक हम ओनरशिप लैंग्वेज नहीं लगाएंगे वो परिवर्तन संभव नहीं है. सरकार हमारे साथ सहयोग नहीं कर रही है, कन्वर्जेंस नहीं कर रही है. मैं सरकार से कन्वर्जेंस नहीं करवा पा रहा हूं या करवा पा रही हूं. ये ओनरशिप लैंग्वेज होगा. आप पॉजिटिव टॉक नहीं है ये अपने को उसमें एक रोल दे रहा है कि यस, मेरे पास कुछ पावर है, मेरे पास कुछ जिम्मेदारी है, मेरे पास कुछ तरीका है इसको इन्फ्लुएंस करने का. सबसे पहला आपका टेक अवे ये है कि कॉजिंग करने के लिए ओनरशिप लैंग्वेज का इस्तेमाल करना है. दूसरा, 3 टारगेट्स. यू सी अ लार्ज ट्राइंगल. टारगेट्स क्या है? These are the issues which cause dissatisfaction in us. We are dissatisfied about them. There can be a variety of issues. It could be traffic, it could be weather, it could be your family, someone in your family that you're dissatisfied with. The way SIR is being run, you could be dissatisfied with that. The way waste is managed in your city, you could be dissatisfied with that. The way in your company things happen, the policies of leave in your company, or the policy of promotion in your company, or assessment in your company. So it could be anything that you're unhappy with, you're dissatisfied with. At any time in your life, there will be a variety of such issues. बहुत से मुद्दे होंगे, कम नहीं होंगे. हम उन मुद्दों को इस लेंस से देखेंगे. क्या लेंस है हमारा? नीचे से शुरू करते हैं. टारगेट्स ऑफ कोपिंग. बहुत सारे मुद्दे आप को पसंद नहीं है, लेकिन आप उन पर कुछ करना नहीं चाहते, कर नहीं सकते, या करना नहीं चाहते, या वो आपकी प्रायोरिटी नहीं है. ठीक है, तो उसको हम रख देंगे टारगेट्स ऑफ कोपिंग में. ये मुद्दा मुझे पसंद नहीं है, लेकिन मैं इस पर कुछ करने वाला नहीं. तो जैसे मैंने लिखा था कि कई शिकायतें हम चेंज के लिए नहीं करते हैं, मनोरंजन के लिए करते हैं या अपना मन हल्का करने के लिए करते हैं. वहां पे हम कुछ बदलाव ना स्वयं करने वाले हैं, ना हम किसी से करवाने वाले हैं. ठीक है, तो बहुत सारे टारगेट्स हमारे कोपिंग में ही जाते हैं, उसे हम निभा रहे हैं. उसके ऊपर है टारगेट्स ऑफ इन्फ्लुएंस. ये क्या है? टारगेट ऑफ इन्फ्लुएंस ये है कि हम स्वयं जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं, लेकिन वो मुद्दा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो हम किसी को इन्फ्लुएंस करेंगे. हो सकता है वो आपका RWA मेंबर हो, वार्ड मेंबर हो, आपका MLA हो, MP हो, कोई NGO उस विषय पे काम करती हो, कोई इन्फ्लुएंसर उस विषय पे बोलता हो, करता हो, कुछ बदलाव लाता हो या लाती हो. तो आप स्वयं नहीं जिम्मेदारी ले रहे हैं, लेकिन वो मुद्दा इतना इंपॉर्टेंट है कि आप उस पर किसी और को प्रभाव चेंज लाने के लिए इन्फ्लुएंस कर रहे हैं. उसके ऊपर सबसे छोटा ट्रायंगल है हरे रंग का. ये वो मुद्दा है जिस पर आप पर्सनल जिम्मेदारी ले रहे हैं, अपनी पर्सनल जबान देने वाले हैं. यू आर गोइंग टू टेक दिस अप एज योर टारगेट ऑफ चेंज. सो कॉजिंग करने के लिए you have to use ownership language and you have to take that particular thing as target of change. In the examples I showed you, the people who took those goals took that particular thing as a target of change. उन्होंने बोला
प्रेग्नेंट महिलाओं में अनीमिया, I will take that as a target of change. For my district, my area, he defined that. Uh, Children passing the board exam, I take that as my target of change. Okay. So, and from the size you can make out, you can't take anything and everything as your target of change at the same time. You're going to take a few, maybe even a one if it's an extraordinary performance. Okay. That's the second takeaway. The third thing is, let me come back here. The third and the key lesson I want to share with you is this, that when you do take something as target of change and you want to cause, उसके बाद जरूरी है कि आप उसे एक स्पष्ट गोल के रूप में लिखें, अनएम्बिगुअस गोल के रूप में लिखें। फिर उस एग्जाम्पल के पास जा रही हूं मैं वापस, जस्ट टू मेक दिस मेक अ पॉइंट। There is a number 4,000 or more. What are you going to measure? In what duration? And what is the result you are aiming at? अगर unambiguous goal आपने ले लिया ड्यूरेशन के साथ, आपकी आधी जो है क्लैरिटी या आधा रास्ता आपका तय हो जाएगा उसी से। कई बार हम जो ये क्लैरिटी लाने के लिए काम करना होता है वो नहीं करते। ओके। अभी कुछ समय पहले मैंने यूपी के बहुत सारी सेल्फ हेल्प ग्रुप महिलाओं को गोल सेटिंग के लिए सेशंस लिए, तो उनमें से एक सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं एक सेल्फ हेल्प ग्रुप ने नीचे वाला लिखा कि तेल मसाला पशु चारा या कोई अन्य रोजगार से होने वाली आमदनी जो हमारे बैंक में है या नगद में है, उस पे उनका फोकस है। दैट्स द रिजल्ट दे वांट, कि हम पैसा गिनेंगे आखिर में कितना हमें आमदनी हुई। ठीक, 1 लाख या उससे ज्यादा 30 सितंबर 2026 या उससे। सो ये स्पष्ट कर दिया उन्होंने कि ये चाह रही हैं रिजल्ट, वो ये गोल लेकर वो काम करेंगे। सो मुझे आशा है कि ये जो एक्स्ट्रॉर्डिनरी परफॉर्मेंस के लिए जरूरत है, इनका उपयोग आप अपने लाइफ में भी कर सकते हैं। अब 1 मिनट जरा ठहरती हूं और मैं आपसे एक परमिशन चाहती हूं कि जो ये उदाहरण मैंने शेयर किए, जो थोड़ा फ्रेमवर्क आपके साथ शेयर किया, इसका लाभ आप कैसे ले सकते हैं, हम क्या आपको ऑफर कर रहे हैं हमारे साथ जुड़ने के लिए, क्या ओपनिंग हम आपको दे रहे हैं, क्या मैं उसके बारे में बात कर सकती हूँ। यदि यहां तक आपको इंटरेस्ट आया है और आपको लगता है कि मुझे आपको वो डिटेल्स बताने चाहिए कि आप कैसे इससे जुड़ सकते हैं, तो प्लीज चैट में यस लिखिए। थैंक यू सारिका, थैंक यू मगन, यस लिख रहे हैं। थैंक यू भूपेंद्र जी, रोमी, जूही, कीर्ति, थैंक यू। ठीक है, तो समय का ध्यान रखते हुए थैंक यू अभिषेक, थैंक यू शालिनी। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मुझे शायद आपसे 5 मिनट एक्स्ट्रा लगेंगे। थैंक यू फॉर दैट, मैं थोड़ा जल्दी करती हूँ। ये डिटेल्स मैं आपको बाद में भी दे दूंगी। ठीक है। सो हमने एक कम्युनिटी बनाई है, उसके बारे में आपको मैं बताना चाहती हूँ। ये कम्युनिटी कॉजिंग इनक्रेडिबल परफॉर्मेंस फ्रेमवर्क पर आधारित एक कम्युनिटी है। हम नॉर्मली काम ऐसे करते हैं कि हम ये फ्रेमवर्क लोगों को सिखाते हैं और फिर वो हमसे 1-to-1 कोचिंग लेते हैं, और उस गोल को अचीव करते हैं। और हमारा अनुभव रहा है कि 80% या उससे ज्यादा लोग वो गोल्स अचीव कर पाते हैं। जो जैसे आपने उदाहरण देखे, कोई 4 गुना है, कोई 6 गुना है, कोई 10 गुना है, वो
वो व्यक्ति डिसाइड करता है कि उसे कितना बड़ा गोल लेना है, और हमारा फ्रेमवर्क उनको वो ताकत या हिम्मत देता है कि हाँ, मेरे पास ये सपोर्ट है, ये एक स्ट्रक्चर है जिसके आधार पर मैं ये गोल ले सकता हूँ। काम तो वही व्यक्ति करता है, क्योंकि हमारी फंडामेंटल लर्निंग है ओनली एक्शंस प्रोड्यूस रिजल्ट्स। जब तक एक्शन नहीं होगा, रिजल्ट नहीं आएगा। इसी फ्रेमवर्क के पिछले 13 साल के अनुभव के आधार पर हमने एक मेंबरशिप बेस्ड कम्युनिटी बनाई है। इस कम्युनिटी में क्या क्या है? ये ऑनलाइन कम्युनिटी है, और इसमें हमारा जो ये मेरे को समय नहीं मिला ये 10 एक्शन प्रिंसिपल बताने का, परंतु आपको थोड़ा सा टेस्ट आ गया। पूरे फ्रेमवर्क पर हिंदी और इंग्लिश में अलग अलग वीडियोस हैं। लोग इसमें जुड़े हैं, कम्युनिटी है, बडी सिस्टम है, लाइव वर्कशॉप्स हैं, और कोचिंग है, ग्रुप कोचिंग, 1 to 1 नहीं, ग्रुप में कोचिंग। आ, ये सब इसमें अवेलेबल है। और हम जो भी पब्लिक लीडर्स हैं वो खाली एक गोल अचीव कर लें उतना इनफ नहीं होता ना। हम आज इस मुद्दे में इंटरेस्टेड हैं, कल हम किसी और में इंटरेस्टेड होंगे। तो न सिर्फ वो एक साइकिल कर सकते हैं, वो इसको अपनी हैबिट भी बना सकते हैं, क्योंकि ये कम्युनिटी उनको बार बार ये प्रिंसिपल्स अपनी लाइफ में जिंदा रखने का मौका देती है। ठीक है, कुछ चित्र दिखा रही हूँ। सो इस कम्युनिटी से जुड़ने के क्या फायदे हैं? एक तो पूरा फ्रेमवर्क है जो टेस्टेड है 13 साल से, 80% से ऊपर हमारा सक्सेस रेट है। टूल्स हैं, एक नेटवर्क है, और आपको एक कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी आती है कि जो मुद्दा है उस पर आप इनोवेशन करें, रिजल्ट अचीव करने पे आपको ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े। आ, क्योंकि वहां पे आप एक ट्रस्टेड फ्रेमवर्क यूज कर रहे हैं। ठीक है, ये सारे बेनिफिट हैं इसके। आ, इसको अगर मैं पैसों में कन्वर्ट करूं तो पूरा फ्रेमवर्क लगभग 10,000 का, जो कम्युनिटी और सपोर्ट फोरम 5,000 का, जो लाइव सेशंस होंगे वो आप एक बार नहीं बार बार कर सकते हैं, पर मैंने एक साइकिल को ही रखा है, तो वो लगभग 60,000 का। और शुरू में जो ये हमारा शुरू का फेज है, हम एक आपको अपना इनक्रेडिबल गोल डिक्लेयर करने के लिए एक 1 to 1 कोचिंग का भी ऑफर दे रहे हैं, वो भी 8,000। तो कुल मिला के 83,000 का एक वैल्यू हम आपके सामने रख रहे हैं। और इस वैल्यू को आज आप हमारे साथ जुड़े हैं, आपने हमें ट्रस्ट किया है, तो आज के लिए हम इसे ऑफर कर रहे हैं 4,998 में, या 4,998 में। दिस इज अ लाइफ टाइम मेंबरशिप। और ये जो नीचे लिंक यहाँ, सॉरी, जो नीचे लिंक यहाँ पर दिया है, जो अभी मैं चैट में दे दूंगी, इसको फॉलो करके आप हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं, और जीवन भर के लिए आप ये फायदे जो मैंने आपके सामने रखे उनका लाभ ले सकते हैं। अब ये स्क्रीन मैं यहाँ पे ओपन रखूंगी, और मैं आपको चैट में ये लिंक दे दूंगी। और मैं यहाँ पर मैं उपलब्ध हूँ, सॉरी, मैं यहाँ पर उपलब्ध हूँ अगर आपको कोई सवाल पूछने हैं, या कोई टिप्पणी करनी है, अ, आज के सेशन के बारे में कुछ सीखे हैं, कुछ जानना चाहते हैं, उसके लिए मैं अगले 15 मिनट यहीं पर उपलब्ध हूँ। हमारे कांटेक्ट डिटेल्स आपके पास ऑलरेडी हैं, आप हमें बाद में भी अप्रोच कर सकते हैं, परंतु मैं अभी भी उपलब्ध हूँ। 1 मिनट, मैं आपको, सॉरी, मैं आपको चैट में ये लिंक दे देती हूँ। आप चैट में ये लिंक देख सकते हैं। ओके, ऑल राइट। सो
मेरी तरफ से मैं अपनी बात को यहाँ समाप्त कर रही हूँ। और आप इतने लोग जो मेरे साथ जुड़े, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। I would really like it if you have any comments or questions at this stage to please come, I'm like, unmute yourself and talk. Thank you, Bhupendra ji. Thank you, Rajat. आप में से कुछ लोग पहली बार सीआईपी से इंट्रोड्यूस हुए होंगे। थैंक यू कीर्ति। आपको कैसा लगा? सारिका, आपने पहली बार डिटेल में सुना है, आप बताएं कि आप क्या, आपके मन में थॉट्स आ रहे हैं व्हेन यू हैव बीन एक्सपोज टू दिस। हाँ थैंक सारिका। थैंक यू मुझे सेशन में लेने के लिए। मुझे लगा शायद नॉर्मल डिस्कशन होगा किसी एक टॉपिक पे, बिकॉज इट वाज एनजीओ। मुझे लगा कोई एक इशू होगा जिस पे सब चर्चा करेंगे। आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि फ्रेमवर्क के बारे में कुछ बोला जाएगा, एंड आई एम स्टिल अच्छा, थिंकिंग कि ये फ्रेमवर्क का इस्टेब्लिश क्यों किया गया, किसने किया। आई हैव लॉट ऑफ डाउट्स, बट इट वाज नाइस कि इट हैज डन अ ह्यूज इम्पैक्ट। तो या, इट वाज नाइस। you're welcome to bring the doubts here. The person who created the framework is in the meeting here, and he is part of the initiative, Professor Balaji. So जब आपको मौका मिला है अपने डाउट क्लियर कर लेने का, या go ahead and ask. Professor Balaji, I'm going to request you to respond because I think she would like to hear it from you. Go ahead, ask your question, Sarika. क्या क्या आप पूछना चाह रही हैं आप? नो सर, आई वाज जस्ट सिंपली थिंकिंग कि क्यों सोचेंगे कोई भी ऐसा एक फ्रेमवर्क बनाना है। व्हाई वुड समबडी गो अहेड एंड टेक दैट रिस्क, ब्रिंग इट टू एवरीवन? कोई क्यों फॉलो करेगा? टाइम लगता है एक फ्रेमवर्क को पूरा प्रोसेस करने में। सो आई वांट टू जस्ट सी कि बिहाइंड क्या चल रहा था। इशू पे तो सब काम करते हैं, बट फ्रेमवर्क साउंड्स समथिंग डिफरेंट। जस्ट दैट क्यूरियोसिटी। Sure, Afan. हाँ, Balaji, are Should you I there? answer? Yes, Yes, very please. much. Yes. Go ahead. Go ahead. Yeah. Sarika, thank you for asking that question. I'm going to speak in English, okay? I'm not very conversant with Hindi. चलेगा? बिल्कुल सर। Thank you. Uh, Yep, when I came up with this framework and gotten a variety of people in variety of contexts to apply this framework and produce those kinds of results, which we gave some examples. She just gave 4 examples. There are maybe 600, 700 such examples. This works, this framework works, this approach works. Why would anybody who created that approach, people who are bought into that approach, like Nidhi, who are coaching, facilitating, dedicating their lives to this, why will we not make it available to everybody? Imagine if all the people on the planet Earth learned this framework today, at least half of them are contributing to the public good measured in GDP terms. If each one of us can double our result, the GDP will go up double.
Why should you wait till 2047? So the whole idea is this works, it benefits. We want to give it to people who can actually use it. Purnima, I'm going to talk about you, okay? Something Mention good. you, not talk about you, mention you. One of the things Hopefully we have something good. done, yeah, very, very good only. I'm telling How myself can I all is say? well, all is well, all is well. One of the things we do is to help enable people to cause incredible performance by teaching them the framework and then go by coaching them. That's one kind of work we do. The second kind of work we do is do parts of the framework to give, like whatever Nidhi has talked about today, no? We make people aware of it. Third, a person like Purnima Nambiar who's there on this in this webinar, people like her, 6 of them so far. And I think Sanjay Vermaji is also here. Yes, he is Yeah, I here. saw him. Yes. Yeah, Yeah. I saw his chair up, but his name appeared something else, Zero Me or something else. So 6 of them, we have actually taught the CIP framework in very great depth. Just the framework. These are all people who are already coaches, trainers, facilitators in their own fields. Okay. So we have taught them this and said, now you go and use it in any way you want. Without telling us, without taking our permission, without paying us any royalty, nothing. I do not know what they have done with this so far. That doesn't matter right now. We want people to use this, yeah, as simple as that, and produce those kinds of results. And that's why Nidhi came up with this initiative to create this community. Okay, so that we can scale it up. Larger number of people can be reached in a shorter period of time, and each one of them can produce those kinds of results. That is my short answer, short in my standards, according to my standards, Sarika. Yeah, sir. Thank you. Does it answer your question, by the way? Yes. Purnima, if you can share, if you don't mind, anywhere you used any part of the CIP framework in your work, you're welcome to do that. It's a completely voluntary stuff. Give me 2 minutes and let me think through because there are several places I've Used something either like that. directly or maybe some influenced by it and did something else or Sure. Take it. Uh, You can come let back. me ask one more person. Raju? See, Raju, who's that? राजू Or पासवान नहीं दो राजू है क्या राजू दिख तो रहे हैं राजू राजू को अभी मैंने गोल सेटिंग सिखाया था राजू may be able to share from his experience. I don't think he's there. Yeah. maybe you can take off this from the screen, maybe then we can see I'll who just is do there. it. Yeah. Sure. I can share about one thing which I quickly remembered. So there is this group of students who are in their MTech and they are part of a semiconductor company which they joined the company when they're in the first year of MTech and then they continue and they have 3 more years of agreement with the company. So we did a workshop for them for their performance and their mindset towards their work. It was a workshop plus 3 months coaching that we did. So I introduced the action planning template for them. You know,
I would say I didn't do it exactly the way it is in the CIP, what do you say, handbook. I kind of tweaked it a bit to, you know, customize it for their need because they were having projects part of which is part of their MTech plus the internship that they were doing for the company that they were working for, or the company that they're doing interning with. Why? So the first batch is over uh, in March, and recently I had a call with their supervisor slash managers. This is a group of 56 students, and one left the program. All the other 55 people, they according to these managers and supervisors, one is their productivity increased, their performance in their MTech increased, their performance in their at their work increased in a way, and then the leadership. In more than that, their certainty with which they commit something and deliver that shifted so much that this company is now able. They're thinking of a tape out for the semiconductor thing, which they couldn't have otherwise done with the students, not with very senior architects and designers, but with these MTech students, they are planning a tape out, which is a very big deal for them. So I don't know whether I shared what you asked me to share, Balaji, but then this is one place where I tweaked it Can a bit. immediately remember. Yeah. Yeah, thank you very much for sharing it, and you're most welcome to tweak any part of the CIP framework you learned and use it any way you want. Just to put what Purnima shared now about something called action planning template, which is one tool amongst maybe 17, 18 tools in the CIP framework. Putting it in the context of what has been happening in this webinar, I read somebody type that the additional things are, I mean, they are distracted and there is overthinking. The action planning template can take care of that. Okay, overthinking, and there are other tools which can help in that. And this gives you a structure for causing, making it happen, thought through, right? Deliberately, मतलब जानबूझकर. तो क्या जानबूझेंगे? गोल सेट करने के बाद कैसा वो गोल को अचीव करना है वही यू विल सोच लो. And this action planning template is one which puts all those things together in one place so that you're not distracted, so that you're not overthinking. A lot of people mentioned about the first one, right? First of the 6 problems. I found that some 3 or 4 people, or 2 or 3 people have put it there, which is I don't have authority. So the action planning template, again, to bring it back to what Purnima shared, that action planning template has a field, a column if you wish, which says person accountable. Who is accountable for taking each of those actions in your plan and what result is expected out of that person, right? And there is something called rally others in CIP framework, which is what it can, that particular part of the action planning template can be used for. So you don't have to get confused. You don't have to wonder. You originally think and put it in the action planning template, and then you can go ahead without much of overthinking. So that action planning, one particular tool helps you do so many things. Thank you, Balaji, for taking on this question. And I would now close this webinar. Thank you, everyone, for joining and staying till the end. Thank you. You're welcome to reach out to us. You have our numbers and emails are with you. I will just leave with one thought. It's not that extraordinary results can't be produced
without the CIP framework? They definitely can be. People do. All, it's not that you yourself or others in your life are not doing big things. Is just that this is a framework that helps you do it repeatedly without overwhelm and burnout. It really breaks my heart when I see people beginning something that is worthwhile for the community and then giving up halfway because they're not able to generate the support they need or they're not able to overcome an obstacle, right? So, as Professor Balaji was saying, there is enough room for producing extraordinary results in many aspects of life, at least in India, Every, not many, every. in every aspect of life, right? So, if you have something, a support and a structure that enhances your chances of success, my request is make use of it. So I will end at that. I'm very grateful that you gave us this time. I'm really grateful the people who are staying till the end. Let's be in touch. Let's be in this conversation. We have begun a series of weekly sessions on different topics related to incredible performance. So next Saturday, there is another session. I will send out the details for that also. You want to get a taste of the framework, look at it from another aspect, you're welcome to join. So just keep in mind, every Saturday at 11 a.m., we will send out the details of the topic and the way to register, etc. But every Saturday of July, August, and September, you can be meeting us, okay, and learning more about performance. So here is to that. All the webinars, the 12 webinars which we have lined up, they're all intended for you to take away some value or other which can help you in your performance simple ways. Nothing complicated, no need for burnout, no need for overthinking. Just simple thing which you and I can do to improve our performance dramatically. All right. With that, thank you, everyone. Bye bye. See you next Saturday. Thank you.